गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के हमारे इस वेबिनार सेशन में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सीए आशा शर्मा, फाउंडर ट्रस्टी एंड secretary of GWCAA, which is Gurugram Women Chartered Accountant Association. And I have been in active practice from the last 14 years, specializing in both indirect and the direct taxation. And on behalf of our team GWCAA, I extend a very warm welcome to all our participants, esteemed members, and our distinguished speaker, CA Pankaj Mishra ji, who is here with us for insightful session, which is being organized at this very crucial point of time, because as we all know कि ये income tax return का एक peak filing time है, non audit cases का especially. So it's a right time for this topic. So, before we dive into the today's session, let me briefly introduce the GWCAA, the Gurugram Women Chartered Accountant Association. It's a growing and a dynamic organization founded in the month of April 2025, which is a recent one. We will be completing the 6th month in the September. It is dedicated to the empowering women chartered accountants into the professional as well as the personal front. And we provide the opportunities, and under this one of our stages Unnati Manch, a platform for progress, जिसके अंडर में हम ये अपने लर्निंग सेशंस करते हैं एंड कंडक्ट कर रहे हैं, हम इसको रेगुलर कंडक्ट कर रहे हैं, विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिट. We believe in the continuous learning, community learning, and a continuous growth and leadership opportunities to the members. Friends, this online program are open to all, and anyone who is eager to learn and grow can attend these programs. But this whole organization is completely managed by the women chartered accountants only. एंड वी ऑल्सो वेलकम कि अगर कोई भी स्पीकर बनना चाहते हैं, जो अपना कोई सेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन गिव यू द अपॉर्चुनिटी. Now coming to today's topic. Today we have gathered here for a very, as I said, key, highly relevant and a practical session, which is critical issues in the ITR reporting for financial year 24-25. And like I said कि ये peak season है ITR filing का, and ITR filing not just a simple compliance, it's a very crucial for ensuring transparency, accuracy and credibility in the reporting. आज की डेट में सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही नहीं है, और भी बहुत सारे रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स होते हैं जो हमें करने के लिए मैंडेटरी हैं. अदरवाइज हेवी पेनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, विच विल डेफिनेटली गेट टू लर्न फ्रॉम द डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर पंकज मिश्रा सर. तो अब मैं इसमें और आगे बढ़ूं उससे पहले एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी हमारे आज के लर्नेड स्पीकर सीए पंकज कुमार मिश्रा जी. He is a fellow chartered accountant, law graduate, peer reviewer. He has also completed his certificate course on forensic audit and fraud detection. And he is co-opted member as a special invitee of Career Counseling Committee of the ICAI for the year 25-26. He is also co-opted member as special invitee of editorial board of ICAI for 24-25. Special invitee of Direct Tax Committee of the ICAI, special invitee of Research Committee. Then he is also a visiting faculty of ICAI MCS batch. Then he is also visiting faculty of the Institute of Cost and Management Accountants of India for Direct Taxes. He is specially acknowledged by the Direct Tax Committee of ICAI for contribution in revising the guidance note on tax audit for under section 44AB of Income Tax Act, which was revised in 2023. Professionally, he has been practicing chartered accountant in the area of startup and MSMEs advisory service, including both direct and indirect tax planning and management. His practice areas also include advisory services on matters of tax compliance, international taxation management, and various other strategic advisory services. He has carried out several assignments for due diligence and the technical visibility evaluation of the companies. He has been a regular speaker and is delivering his lectures across various platforms, online, offline, and at various forums, whether it be the institutes, branches, study circles, various. So, sir, with this, I welcome you all. एंड वेरी थैंक्स टू यू कि आपने अपना टाइम हमें दिया हमारे इस फोरम को.
Thank you so much. So now over to you, sir. थैंक यू आशा जी। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? जी सर। क्लियर है ना? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू आशा जी एंड योर entire team for organizing this webinar on this peak season. As you well mentioned, on this peak season we will have a this webinar where there is a lot of queries and lot of issues that needs to be discussed. So accordingly, let's start and let's begin with the my presentation. Now let me describe you with the fact ki where can I share my screen? I can share my screen. Can you allow me to share my screen? अलाउ कर दिया सर, एंड आई हैव मेड यू को होस्ट आल्सो, तो यू कैन आल्सो कंट्रोल। ठीक है, my screen is visible now. हाँ, स्क्रीन इज विजिबल, जस्ट उसको स्लाइड शो मोड पे कर दीजिएगा। ओके ठीक है, इसको स्लाइड शो कर। ठीक है। ठीक। Okay, the topic that has been allotted to me for the deliberation is there is some ITR reportings, and the ITR reporting directly matches with the changes that is brought in this year through the ITR forms, right? So now I would be discussing in that way कि first of all मैं discuss करूंगा कुछ statutory provision discuss करूंगा कि जहाँ पे हमारे को difficulty होती है कि जैसे कि question number 1 मैं refresh करता हूँ जरा आपको। The very first question, the person who is not the person whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax is required to furnish an income tax return. Despite, and also the person whose total income does not exceed the maximum amount, whether that person is also required to furnish the income tax return. This is the one question, right? Another question, earlier we were used to claim deduction by entering only the digit amount portion wherever it's required, right? Now, whether in the same way we are eligible to get the deductions, benefits, and exemption of those particular sections. Number 2 questions. Number 3, what is the reason that this year the due filing of income tax return has suo motu extended by the Central Board of Direct Taxes, right? Number 4, there is the time gap between the person whose books of account is required to be audited or the person whose books of account is not required to be audited. In this way, the date is extended to the 15th of September. Whether the time gap, which is actually as per the Act, is going to be provided to the stakeholders in the coming days, the question number 5. So all these, and what all norms is required and what all reporting is required to be made while furnishing the details of the foreign asset and liabilities. That all we are going to look into in these my deliberations. What all common mistakes are there that we need to avoid? What all basic planning that needs to be done while opting the forms? तो all these are the area जो मैं डिस्कस करूंगा और आज के डिलीवरेशन को कंटिन्यू करूंगा बाय मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इस बार जो नोटिफिकेशन आया था फॉर्म्स चेंज होने के, क्या वो सारे नोटिफिकेशन एक साथ आए थे या अलग अलग आए थे? मेरे ख्याल से ये सारे नोटिफिकेशन अलग अलग आए, जैसा डेट मैंने यहाँ जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो विजिबल है। ITR 1 कब कब आया? ITR 1 एंड 4 एक साथ रिलीज, एक साथ नोटिफाई हुआ था 29 अप्रैल 2025 को। ITR 3 आप डेट देखना कब फॉर्म नोटिफाई हुआ और कितना डेट इन्होंने एक्सटेंड किया। 29 अप्रैल 2025 को पहला फॉर्म आया, यहाँ पे 29 डेज का अपने को एक बफर पीरियड यहाँ पे दिया इन्होंने। 30 अप्रैल 2025 को ITR 3, 1 मई को 5, 2 मई को, 3 मई को ITR 2, 6 मई को ITR 6, फॉर्म ITR V 7th को आया, ITR 7 9th को आया, ITR U इज 19th मई 2025 को ये नोटिफाई हुआ, राइट?
अब जो डेट हमारा एक्सटेंड हुआ है अप टू 15 सितंबर, उस डेट वो कब कब डेट एक्सटेंड हुआ है, उसकी डेट क्या है, कोई बता सकता है? आशा जी, ठीक जो है डेट क्वेश्चन। एक्सटेंड जो डेट एक्सटेंड हुआ है हमारा, वो मेरे ख्याल से कब एक्सटेंड हुआ है? 28 आई अप्रैल या थिंक 27 अप्रैल, कुछ समवेयर लाइक दैट। आई गेस सो। ऐसा एग्जैक्ट ही डेट। कुछ होगा। चलो एग्जैक्ट। लेट्स सी डिस्कस कर लेते हैं उस पे। राइट, ओके। अब देखते हैं, जब डेट एक्सटेंशन आया, जब भी डेट एक्सटेंड आया आप देखो, उस टाइम पे इन्होंने 15 सितंबर यानी कि 28 मई को डेट, मई में डेट एक्सटेंशन आ गया था, जो 15 सितंबर की बात कर रहे थे। अब कमिंग टू दी अनदर पार्ट, कि ये नोटिफिकेशंस में क्या चीज नोटिफाई करना कंपलसरी होता है, राइट? क्या फॉर्म्स को नोटिफाई करते हैं, व्हाट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर देयर व्हिच इज नीड टू बी नोटिफाइड इन द फॉर्म, एंड व्हाट ऑल सेक्शंस एक्चुअली कन्फर्ड द पावर। तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन का जो वर्डिंग होता है, दैट वर्डिंग बिगिंस विद इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 139 रेड विथ सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हेयर बाई मेक द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द इनकम टैक्स रूल 1962। अब ये क्या रूल्स बनाए कि दीज रूल्स में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स रूल, एक बात हो गई। ये कब से फोर्स पे आएगा? रूल में लिखा हुआ है इटसेल्फ, द डे शेल कम इनटू द फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025, यानी कि 29th डे ऑफ अप्रैल 2025 को फॉर्म नोटिफाई हुआ बाय गिविंग की the form shall come into the force from the first day of April 2025. The income tax rules 1962, मतलब प्रिंसिपल रूल्स की बात कर रहे हैं। ऑल अमेंडमेंट्स इन द फॉर्म will be carried through the principal rules. That rule is Rule 12. In the principal rules in Appendix 2, what all forms are notified? That is Form ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 Sugam, 5, 6 ITRB, and Indian Income Tax Return Acknowledgement. These forms are actually notified. Now coming to the first line of the notification, जो बोलता है in exercise of the power conferred by section 139 read with section 295। सर सेक्शन 139 और सेक्शन 295 का क्या रिलेवेंस है जिससे कि फॉर्म नोटिफाई होता है? सर पहले सेक्शन 139 देखते हैं। 139 में तीन चीजें लिखी हुई हैं। 139 मैंडेट करता है कि यू रिक्वायर टू फर्निश रिटर्न ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ सच अदर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे? इन द प्रिस्क्राइब्ड रूल, दैट इज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड सेटिंग फॉर सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फॉर्म में ये बात लिखी हुई है कि आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो सर ये यही फॉर्म्स नोटिफिकेशन में हम इसी फॉर्म को नोटिफाई करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड अकॉर्डिंगली उसको फिर आगे फर्दर इनकॉर्पोरेट करते हैं और चेंजेस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी देयर। अब देखते हैं कि सेक्शन 139 क्या बोलता है। सेक्शन 139 में दो चीजें कही हुई हैं, किसको किसको रिटर्न फर्निश करनी है। नंबर वन, पहले रिटर्न उनको फर्निश करनी है जिनका टोटल इनकम, देखते हैं एवरी पर्सन, सेक्शन 139(1), एवरी पर्सन A being a company or a firm, or being a person other than a company or a firm, if his total income or the income of any other person in respect of which is accessible under this act during the previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to tax। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि every person whose total income exceed की बात कर रहे हैं, which is not chargeable to tax, shall on or before the due date furnish a return of his income or the income of such other person during the previous year। कैसे करना है? इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड सेटिंग फॉर सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था, दैट इज, यहां पे इन्होंने लिखा है कि एक्सीडेड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। क्या फॉर द पर्सन हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, whether that person is also required to furnish the income tax return by virtue of provision of section 139(1)? A person whose total income does not exceed
whether those person is also required to furnish their income tax return? The answer is yes. If they meet certain criteria, then they also required to furnish the income tax return. Coming to the another, अब देर इज अ वेरियस प्रोविजो अंडर सेक्शन 139(1) जो मैंडेट करता है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश करना है, दो योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. कमिंग टू द फर्स्ट प्रोविजो, प्रोविजो नंबर 7, जो मैं आपको टेकअप करता हूं और जो हमारे को रिलेवेंट भी है. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ए पर्सन रिफर टू इन क्लॉज बी, ऊपर की बात करें, सेक्शन 139 की बात कर रहे, who is not required to furnish a return under this subsection and who during the previous year current account में has deposited an amount or aggregate of the amount exceeding 1 crore rupees. एक कंडीशन तो ये हो गई. दूसरी कंडीशन कह रहे हैं has incurred expenditure of an amount or aggregate of the amount exceeding 2 lakh rupees for himself or any other person for travel to a foreign country. एक ये बात हो गई. दूसरा क्या है कि has incurred expenditure of an amount or aggregate of the amount exceeding 1 lakh rupees towards consumption of electricity or fulfill such other condition as may be prescribed. यहां पे इन्होंने कहा कि अगर ये एसएससीज हैं, they shall furnish a return of his income on or before the due date in such form and verified in the manner and setting for such other particulars as may be prescribed. ये बात हुई जो सेक्शन 139 में ये बात करी है कि अगर उसी को रिटर्न फाइल करना है एज पर सेक्शन 139(1), जो वहां पे लिखा है कि जो पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट. लेकिन प्रोविजन 7 ऑफ सेक्शन 139(1) ये मैंडेट करते हैं कि इफ यू फुलफिल दीज कंडीशंस देन आल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द इनकम टैक्स रिटर्न. नाउ कमिंग टू द प्रोविजन 4, कमिंग टू द प्रोविजन 4 ऑफ सेक्शन 139, जो बोलता है a person being a resident other than not ordinarily resident in India within the meaning of clause 6 of section 6 who is not required to furnish a return under this subsection. यानी कि because their total income does not exceed the maximum amount, they are not required to furnish the income tax return. However, who at any time during the previous year holds as a beneficial owner or otherwise any asset located outside India or has signing authority in any account located outside India or is the beneficiary of any asset including any financial interest in any entity located outside India shall furnish on or before the due date a return in respect of his income or loss for the previous year in such form and verified in the such manner and setting forth such other particulars as may be prescribed. यानी कि प्रोविजन 4 में भी ये बात मैंडेट करी कि दो your total income does not exceed the maximum amount, even you are required to furnish your income tax return if you qualify these particular conditions. Coming to the now provision 2 of section 139, जो every company के बारे में बात करता है, बोलता है provided provision 3 of section 139 provided also that every company or a firm shall furnish on or before the due date the return in respect of his income or loss in every previous year. That is what mandated by provision 2 of section 139(1). Now 4 already we covered. Now proviso 5, that nothing contained in the fourth proviso shall apply to an individual being a beneficiary of any asset located outside India where income, if any, arising from such asset is includable in the income of the person referred to in clause of that proviso in accordance with the provision of this act. 6 में हम देखते हैं कि जी टोटल डिडक्शन हमें चेक कब करना है कि व्हेन टोटल इनकम एक्सीड्स, टोटल इनकम जो एक्सीड करेगा व्हाट वेदर गिविंग इफेक्ट और विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 एंड ऑल अदर डिडक्शन, वो एक बार देख लेते हैं. दैट एवरी पर्सन, provision 6 of section 139 speaks about that every person being an individual or a Hindu undivided family or an AOP, BOI, whether incorporated or not, or an artificial juridical person, if his total income or the total income of any other person in respect of which is accessible under the Act during the previous year shall on or before the due date furnish a return of his income or the income of such other person without giving effect to the provisos of section 1038, section 10A, 10 capital B, 10 BA, or section 54, or section 54B, D, EC, F, G, GA, and section GB, or chapter 6A, exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax. मतलब कहने का विदाउट गिविंग इफेक्ट आपको चेक करना है कि वेदर
you are supposed to file your income tax return or not doing this. Now coming to the another part, the rule 12, what all particular sections which mandate us to file the income tax return. If you will find the return of income required to be furnished under these particular sections, section 139, 1, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F इसमें, and 142, 1 में, 148 में, 153A में, relating to the assessment year commencing on the first day of April 2025 shall furnish their return in ITR 1. जो बात कही वो ITR 1 कौन कौन क्या कंडीशन है, किसमें एप्लीकेबिलिटी होती है, क्या क्या कंडीशन है जो हम चेक करेंगे सहज के टाइम में. अब हम चर्चा करते हैं ITR 1 सहज में क्या कंडीशन है और किस एसएससी के लिए एप्लीकेबल होता है. ITR 1 is actually applicable for an individual being a resident other than not ordinarily resident, having total income up to rupees 50 lakhs and having income from salaries, one house property, other source interest, long term capital gain under 112A जो इस साल आया है up to rupees 1.25 lakhs and agriculture income up to rupees 5,000. किस पे एप्लीकेबल नहीं है ड्यू डिलिजेंस, वो भी हम इस पे चेक करते हैं. Not for an individual who is either a director in a company or has invested in unlisted equity shares, or in case where TDS has been deducted under section 194N, or if income tax is deferred on ESOPs, or has assets including financial interest in any entity located outside India. अब सर इसमें देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं जो कंडीशन फॉल करते हैं ITR 1 पिक करने के लिए. रूल 12(1), in case of a person being an individual who is resident other than not ordinarily resident and where the total income includes income chargeable to income tax. एक तो ये बात हो गई. Salary or income in the nature of family pension as defined in section 57, income from house property and losses from the other sources. अच्छा, ये जो 4 नंबर पॉइंट है, this is inserted by the notification. अब ये क्या है, कैपिटल गेन, where SSC has only long term capital gain under section 112 capital A not exceeding 1,25,000 rupees and does not have any brought forward loss or loss to be carried forward under the head applicable from the assessment year 2025-26. जब ये सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे तो इस कंडीशन के लिए आपको कौन सा फॉर्म पिक करना है, बी इन अ फॉर्म सहज ITR 1 and verified in the manner indicated therein. ये बात इन्होंने कही. और फिर further what all points and due diligence is required to be undertaken before picking the form ITR 1 Sahaj form, provided that the provision of this clause shall not apply to the person. किस पे applicable नहीं है वो देखते हैं. Assets including financial interest in any entity located outside India, signing authority in any account located outside India, income from any source outside India, income to be apportioned in accordance with the provision of section 5A, has claimed deduction under section 57, is a director in any company, has held any unlisted equity share at any time during the previous year, is assessable for the whole or any part of the income on which tax has been deducted at source in the hands of the person other than an SSC. ये ITR 1 के ये सारे ड्यू डिलिजेंस हैं जो हमें केयरफुली इसको चेक करना है, जिसके लिए इस बार इंस्टीट्यूट ने चेकलिस्ट भी एक रिलीज करा है. Further, also the proviso of this section shall not apply in these circumstances. Has claimed any relief of the tax under section 90A or deduction of tax under section 91. Has agricultural income exceeding 5,000 rupees, total income exceeding 50 lakh rupees. Has income taxable under section 115 BBDA. Has income of the nature referred to in section 115 BE. Is a person in whose case the tax has been deducted under section 194 and sir, these all are the few particular conditions that is actually needs to be looked into while we are picking the form ITR 1 for furnishing of our income tax return. Now coming to the another form ITR 4 जो एक साथ notify हुए थे ITR 1 and ITR 4, that is अब ये ITR 4 किस पे applicable होता है? For in a case a person being an individual or a Hindu undivided family who is resident other than a not ordinarily resident, or a firm other than the limited liability partnership firm which is a resident
deriving income under the head profit and gain of the business or profession, and such income is computed in accordance with the special provision referred to in section 44 AD, ADA, AE, the Act for the Computation of Such Income. और जो इस बार अमेंडमेंट आया है, जो फॉर्म ने नोटिफाई करा है, that is has capital gain if any, where SSE has only long term capital gain under section 112A not exceeding 1,25,000 rupees. उसको किसमें फाइल करना है? बी इन अ फॉर्म सुगम ITR 4 and verified in the manner indicated therein. अच्छा, इस बार जब बजट आया था, इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने दो चीजों पे ज्यादा इंफेसाइज करा था. वो जो सबसे पहली चीज थी वो थी द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड सेकंड चीज थी वो टैक्स पूछा था ना मार्च का. हेलो, जो सेकंड थी वो था टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन फॉर द एसएससी. तो ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट आया है, हैज कैपिटल गेन इफ एनीवेयर एसएससी हैज only long term capital gain under section 112A not exceeding 1,25,000 is in order to corroborate with the in order to reduce the compliance burden for the SSE. This point 2 capital gain under section 112 capital A was introduced by this notification accordingly. Now still the due diligence that is required to be maintained, that is required to be checked while choosing ITR1 SAS form. Similarly, there is a use list of due diligence and the details that is required to be take care while picking the form ITR4. अब देखते हैं इसमें क्या क्या. In the similar way, when this particular ITR form is not applicable for the SSE, when an has asset including financial interest in any entity located outside India, has signing authority in any account located outside India, income from any source outside India, has income to be apportioned in accordance with the provision of section 5 capital A, is a director in any company, or total income exceeding 50 lakh rupees, owns more than one house property, or any brought forward loss or loss to be carried forward under the any head of the income, or and has claimed any relief of the tax under section 90A or deduction of the tax under section 91, has agriculture income exceeding 5,000 rupees, income taxable under section 115 BBDA, income of the nature refund under section 115 BE, जो मैंने ITR 1 में भी डिस्कस किया ये सारी चीजें. तो ITR 1 और 2 कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली. अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई एक्चुअली में क्या चेंजेस फॉर्म्स में आए हैं, राइट, और क्या रिपोर्टिंग अपने को किस तरीके से करनी है, और कितना स्कोप जो है वो वाइडर हो गया हुआ है इन ऑर्डर टू रिपोर्ट और फर्निश द इंफॉर्मेशन so that your return should not get invalidated. You have to look into these aspects. Just have a look on these changes. Nature of changes क्या हुआ? Long-term capital gain reporting permitted. Taxpayer can now report long-term capital gain under section 112 capital A up to 1.25 lakhs directly in ITR 1 and ITR 4, provided there are no capital loss to carry forward. This is clear. Enhanced presumptive tax limit. आपको पता है 44 AD का टैक्स लिमिट इस बार बढ़ गया है. दैट इज 44 AD में अर्लियर इट वाज 2 करोड़, जो नाउ हैज बीन इंक्रीज टू 3 करोड़ रुपीस. नाउ सिमिलरली इन सेक्शन 44 ADA अर्लियर इट वाज 50 लाख, नाउ इज इंक्रीज टू 75 लाख अकॉर्डिंगली. ग्रॉस टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीट्स ये कह रहे हैं इफ 95% और मोर ट्रांजैक्शंस आर डिजिटल, इन दैट सर्कमस्टांसेस द लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड. नाउ मैंडेटरी टैक्स रिजीम डिस्क्लोजर, आप सबको पता है कि रिपोर्टिंग का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई जो टैक्स रिजीम है, दैट टैक्स रिजीम शुड बी करेक्टली मेंशन्ड कि हमें क्या कौन सा रिजीम हम ऑप्ट कर रहे हैं. सेक्शन 10 IE रिक्वायरमेंट में दोज स्विचिंग फ्रॉम द न्यू टू द ओल्ड टैक्स रिजीम इन असेसमेंट ईयर 2025-26 एंड रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फॉर्म 10 IEA एक्नॉलेजमेंट नंबर इन देयर रिटर्न, जो इन देयर रिटर्न जो हम शुरू से प्रोवाइड करते आ रहे हैं. उसके बाद क्लॉज लेवल डिडक्शन भी बढ़ गया हुआ है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको पिक करना है. सिमिलरली जब आप रिलीफ क्लेम करते हैं सेक्शन 89(1) में, वहां पे कंट्री का ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया हुआ है, वो आपको पिक करना है. अभी 3 कंट्री का आ रहा है, बाकी आप अगर कंट्री का लिस्ट नहीं है वहां पे तो आप अदरवाइज वहां मेंशन कर सकते हैं. मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एक्टिव बैंक अकाउंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, is actually been incorporated in the form कि अभी तक हम
एक अकाउंट जनरली एज अ मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ बैंक अकाउंट करते थे जनरली, जिसमें हमें रिफंड क्लेम करना होता था. नाउ कमिंग टू दोज एस्पेक्ट्स, अब फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स वी हैव टू रिपोर्ट द एंटायर बैंक अकाउंट. डोरमेंट अकाउंट भी रिपोर्ट करना है, वो डोरमेंट अकाउंट रिपोर्ट नहीं करना है जो 2 साल एंड अबव हो गया हुआ है जिनका, उस वो रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर है. तो these are the few changes which is actually required. Another more changes here you have to look into, जो report करना है किस तरीके से. If you are claiming any deduction of interest under section 24B, right? So you have to report like this way. Key interest on borrowed capital, you need to furnish these information. Loan taken from the bank, that is name of institution. लोन अकाउंट नंबर देना है आपको, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन देना है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन देना है, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट कितना है, और इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द ईयर. हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल 24B, सेक्शन 24B में पहले हम नॉर्मल अपना डिजिट डाल के जो वैल्यू है हमारी वो डाल के हम सेक्शन 24B का एग्जम्पशन क्लेम कर लेते थे. नाउ फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स इफ यू वांट टू क्लेम 24B इंटरेस्ट, then you have to furnish all these particulars in your income tax return. Now the another concept, that is PRAN, PRAN, that is called permanent retirement account number. PRAN stands for for those SSE who claiming deduction under section 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, then they required to furnish permanent retirement account number also. Abhi permanent retirement account number is a unique 12-digit number assigned to individuals with accounts allowing access and activity monitoring के लिए उनको दिया हुआ है. Now for claiming 80U, you need to furnish these particular information. क्या क्या है? Nature of disability, type of disability, date of filing form, acknowledgement number of the form, UDID number, unique disability ID, is a unique identification number assigned to the individual with disability in India. Acknowledgement number of the form, rule 11A, ये बात कर रहे हैं इसमें. Section 80DB, medical treatment of the specified disease. अब specified disease as notified by the board can only be selected and only eligible for the benefit under section 80DB. User type कौन कौन से होंगे? Self or dependent, self or dependent senior citizen is eligible. Name of the specified disease selected from the drop down list. जब आप 80DB में क्लेम करने जाओगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो डिजीज आएगा वही डिजीज आपको सेलेक्ट करना है, और द अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट you wants to claim. 80EE, interest on loan taken for residential property, and 80E, capital E, for the interest on लोन फॉर द हायर एजुकेशन. जब इसका बेनिफिट अपने को लेना है तो ये ऑल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन. क्या क्या देना है अपने को? लोन टेकन फ्रॉम, कहां से लोन लिया हमने, लोन अकाउंट नंबर देना है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन होना चाहिए हमारे पास, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, और इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द ईयर. 80EB, परचेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ऊपर वाले सारे आपको देने, साथ में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी आपको देना है. मैंडेटरी बैंक अकाउंट्स जो ऊपर उन्होंने कहा था, नेचर ऑफ बैंक अकाउंट कौन कौन से होंगे ये देख लेते हैं. सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट ओडी, नॉन रेसिडेंट अकाउंट, कैपिटल गेन अकाउंट, स्कीम वाला अकाउंट वो भी देना है, और अदर्स में जो सेम नेचर ऑफ अकाउंट्स होंगे तो वो सारे डिस्क्लोजर अपने को रिपोर्ट करना है इस बार इनकम टैक्स रिटर्न में. ये सारा अपना हो गया ITR 1 एंड ITR 4 में जो मैंडेट कर रहे हैं चेंजेस. और ये सारे चेंजेस अगर आप डिडक्शन ITR 3 में भी ले रहे हैं और फर्दर आगे भी क्लेम कर रहे हैं, देन यू नीड टू फर्निश ऑल दीज इंफॉर्मेशन. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस विच इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन ITR 4, तो वो क्या चीज है वो देखते हैं. द 4 इंफॉर्मेशन दैट इज sundry creditors, inventories, sundry debtors, and cash in hand is the mandatory information which is required to be furnished in the form. Right? Apart from these information, still there are few things are there. Though you बोलते हैं कि आप तो वो सारे इंफॉर्मेशन जो मैंडेटरी हैं वो तो आपको देने ही देने हैं, और दूसरे तब आप दीजिए तो आपके पास अवेलेबल हो. तो पार्टनर्स, मेंबर्स, ओन कैपिटल, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, एडवांसेस, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज,
is required to be furnished in the liability side, and fixed asset, inventory, sundry debtor, balance with bank, cash in hand, loan and advances, and other assets. Total asset is also required to be furnished despite these four informations, right? तो आशा जी, यहां तक ITR 1 एंड ITR 4 मैंने सारा कवर किया. क्या ITR 1 और ITR 4 में कोई क्वेरी या कोई इंफॉर्मेशन जो और चाहिए हमें? स्पेसिफिक एक ITR 1 की क्वेश्चन आया है मीनू कपूर जी का. इफ द इनकम इज लेस देन द टैक्सेबल इनकम but some refund is there, then should the last option others for reason of filing return should be opted in the ITR 1? सर वॉलंटरी तो आप कर ही सकते हो ना. मतलब इवन दो interest income is your total income is not chargeable to tax, however TDS is deducted, right? Then in order to claim the TDS refund, you may file depending upon the nature of classification you are. क्योंकि ITR 1 लेस देन 50 लाख, ITR जो बोलता है लेस देन 50 लाख अगर आपकी इनकम है तो you can opt that form and you can file your return. Yeah, can I say something? Yeah, please. Yeah, my question is, yes, I know I can file that, but my question is, when I'm filing the return, there is an option where it says that you have to mention the reason. Why are you filing the return? Is it your income is more than the taxable amount, or under, that 7 provision of whatever? And the last one is others. So I was just Madam, asking, do I have to? What is actually nature of income क्या है आपकी? What is the nature of income? Only others, income from other sources. Income from other sources, that is interest and all other stuff, right? Dividend, interest, and dividend interest. Madam, if income from other source is eligible for ITR 1, of course the total income does not exceed the 50 lakh rupees. Yeah. Right. So I don't know why आप फॉर्म में ऑप्शन है, you just fill it. वो तो correct होगा. It should not ask any reason for that. It does. The first thing is the minute you start filing, the first question comes when you start filing the return, that why are you filing this return? I don't know, maybe Asha would know more about, you have more experience, how it appears. It says, there is a question where they ask that, I don't know the exact wording, but they ask that why it should be. Madam, let me clear you one thing. Just have a look on. I can tell you the question is, are you filing the income tax return for any of the following reasons? And first it says. Proviso 7. Hanji? Yes, Proviso 7 she is talking about. No, Proviso 7. Taxable income is more than basic exempt limit. Second, it says filing return of income due to, that is maybe that she is saying the last one is others. If you are not falling in option number 1 and 2, then yes, you should mark on others itself. Okay, I have one more question. Yes. If I have remitted money abroad or spent outside, but the total amount is less than 1 lakh, so no TCS has been deducted, but it's appearing in my, in my AS 26 AS and all those things. So while I'm filing return, should I mention that with 0 TCS, or there is no need to mention? Because it's amount remitted abroad. I know in earlier years, maybe it was, stressed. That's what I heard, that even if it's 0, mention. So is there any need to mention that? And if I mention, does that make any difference? No, you have remitted 1 lakh rupees only, no, madam? Yes, less than that, yes. Less than that. Or you are remitted for the family maintenance, and for what reason is there? A majority of it is for family maintenance, and then some amount for shopping. That's fine. That's fine. पंकज, I got her point. Maybe what we can do is कि इसको एक बार क्वेश्चन को ले लेते हैं इनका. मैं वो ले लेती हूँ व्हाट्सएप पे, तो दैट वी कैन, क्योंकि एक इशू तो क्लियर है कि वहां पे आप अदर करके कर सकते हैं, है ना? तो
पर्टिकुलर अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ है तो दैट वी We कैन। will look into that. Madam, you can just drop me a message on. मीनू जी आपके पास नंबर तो है ही मेरा, एक बार आप Yes. कर दीजिएगा शेयर, Yes. राइट? Thank you. इसको कर लेंगे डिस्कस। देन Okay. अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम कविता पांडे जी, एनी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 10 IA फॉर सेक्शन 80U? कोई ड्यू डेट भी है क्या 10 IA के लिए? हाँ, तो बिफोर क्लेमिंग ऑफ एग्जेम्पशन है ना, बिफोर क्लेमिंग ऑफ एग्जेम्पशन और फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, द मोमेंट यू आर प्लानिंग, तो आपको उससे पहले 10I फाइल करके, उससे पहले आपको फाइल करना पड़ेगा कि स्पेसिफाइड डिजीज है ये। तो अगर ITR मेरी लेट फाइल हो रही है, बिलेटेड हाँ। ITR फाइल हो रही है, देन IA भी लेट फाइल हो सकता है आफ्टर दिस 139(1) ड्यू डेट? नहीं उसका कोई वैसे, इशू तो नहीं है? नहीं, पहले तो आपको ये लेना पड़ेगा कि स्पेसिफाइड डिजीज सर्टिफाई कराना पड़ेगा पहले हाँ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल से कि वो हाँ, डिजीज वहां पे है। और यस। वो दैट दैट शुड बी, मतलब बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है वो एक्चुअली। तो मीन्स कि ड्यू डेट के बाद भी है तो हाँ, चलेगा, ड्यू बट डेट मेरे, बिफोर एक बार ITR मैं होना और चाहिए। आई विल चेक दिस एंड देन विल लेट यू नो। लेकिन वो कहता है Okay, बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो इट कुड बी लुक्ड इनटू दैट प्रोस्पेक्टिव एक्चुअली। ठीक है। Then एक क्वेश्चन मेरा भी है कि इफ द TDS इज डिडक्टेड इन 194R या फिर 194H, और इसके अलावा द अदर इनकम इज ओनली फ्रॉम सैलरी। हाँ, इनफैक्ट 194R एंड H में भी एक सिंगल सिंगल एंट्री है 6-7 हजार रुपए की खाली। तो कैन ITR 1 बी ऑप्टेड कि इसको अदर सोर्सेज इनकम में दिखाए? अदर सोर्स, क्योंकि रिम्बर्समेंट तो वो किसी एक्स कमीशन है, इनकम फ्रॉम, जनरली लोग बोलते हैं कि अगर कमीशन का इनकम है तो यू हैव टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। It's because this year I heard from हाँ, someone कि लेकिन सिंस यू आर, 194H में utility is creating objection that हाँ, other sources cannot be opted. हाँ, वो You need यूटिलिटी to, बोलेगा, आपको बोलता है, बट एज फार एज कमीशन इनकम इज कंसर्न, तो कमीशन इनकम इज जनरली रिक्वायर्ड टू फर्निश entire balance sheet and profit and loss account for the commission income, right? As far as your commission income is there, got your point. right? Thank So you. then accordingly you can pick and choose your form. देखिए, अगर ठीक दो डिपेंडिंग अपॉन दैट की क्या है, 200 रुपए अमाउंट है, 500 रुपए अमाउंट है, exactly, राइट? this is the मटीरियलिटी thing. क्या है, एंड इट कुड बी अब्सॉर्ब्ड बाय ITR 1 अदर, that could be okay. Otherwise the commission itself required entire thing to be maintained, like a Yeah, balance asking sheet. a client to prepare a balance sheet for the Yes. 6,000 commission income is a This is humongous not task. relevant, but as per Right. the reporting criteria and the reporting standard of the income tax return is concerned, That, they were expecting to give the entire detail of the commission, हाँ. right? Otherwise, from this year onwards, the system is creating issue while considering commission income in the other source. ओके, गॉट इट। देन रजनी जी, एक क्वेश्चन जो आपका है वो हम आंसर तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। हाउ मच कैश इन हैंड शुड बी डिस्क्लोज इन द केस ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम एंड फाइनेंशियल असेट्स? Madam, actual cash in hand, actual क्योंकि cash in hand, हाँ, whatever cash you have withdrawal from the bank as on 31st of March, and that cash is still lying in your books, that cash is required to be disclosed in your return. then another question is, can we take the interest on loan deduction for both under the head of house property and 80EE? No, both cannot be claimed. 80EE, there is a certain criteria कि up to that date अगर आपने लोन ले रखा है, then only you are eligible. If for the certain date है उसका, 80EE की बात कर रहे हैं हम. If it is eligible for 80EE, then in that case, जो भी एडिशनल अमाउंट होगा दैट कैन बी टेकन एज डिडक्शन, और मतलब जैसे हाउस प्रॉपर्टी में अप टू डिडक्शन 2 लाख डिडक्शन रुपीस तक। वहां पे 80EE की जो बात करते हैं ना मैडम, वो हाँ 80EE में क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको वो अप टू दैट स्टेज तक आपका हाँ, डिडक्शन, आपका वो होना चाहिए, इंटरेस्ट पे होना चाहिए, और उस पीरियड तक आपको इंटरेस्ट लेना, वो लोन आपको मिलना चाहिए, लोन लेना चाहिए, लोन लेना राइट। चाहिए। वो डेट स्पेसिफाइड है, अकॉर्डिंगली फिर आगे फर्दर आप उसको क्लेम तो कर सकते ये डिडक्शन से अगर मेरा एलिजिबल आता है, सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं, देन इन दैट केस वो इन एडिशन टू हाउस प्रॉपर्टी इन हेड में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन एडिशन टू दैट 80EE का मुझे मिल जाएगा। हैं। इन एडिशन टू दैट मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा आपको, ओके ओके, क्योंकि वो ठीक।
इंटायरली वहां पे भी लिमिट एक डिस्क्राइब है, राइट। और इवन मैं ये नोट कर लेता हूँ एक बार, मैं और इसको गो थ्रू करके चेक करके बताऊंगा आपको। Then another question is from Rajni ji. Exempt income is mandatorily required to be disclosed in ITR in non-tax audit case. यस मैडम, इट्स मैंडेटरी वाइज इट्स एन एग्जेम्प्ट इनकम। आपको मैं बताऊं, सेक्शन 139 का सब सेक्शन 6 पढ़ो, 5 पढ़ो, एग्जेम्प्ट इनकम जिसका है उसको भी मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। Sir, my question is that if the employee is serving the United Nation organization, right, then he is getting a salary, but the salary is not taxable because he is serving the government body, right? Where should I disclose the salary income in the form? He is resident in India? Yeah, he is resident in India, but his salary is not taxable as per the norms. UN has given him certificate as well for the same. Okay, the salary is exempted, na? Right. So if he has an exempted income, then he needs to file an income tax return, madam, as an exempt income. No, I obviously he will file the income tax return, but I'm saying ki where he need to disclose that he is getting this much of salary and this salary income is exempt. मैडम देयर इज अ ऑप्शन, जब भी आप फॉर्म में जाओगे ना तो वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शंस आते हैं एग्जेम्प्ट इनकम करके। आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी ले सकते हो, और वहां पे भी जिस हेड को पर्टेन करता है उस हेड में भी पर्टिकुलर किस से आया है वो आप सेक्शन 10 में डाल के ले सकते हो एग्जेम्प्ट इनकम। स्पेसिफिकली शेड्यूल ईआई है वो वहां पे यूज हो जाएगा। हाँ, वहां पे वो एग्जेम्प्ट इनकम में वहां पे लिस्ट आता है। नहीं, शेड्यूल ईआई में, E2I में अगर मैं डालूंगी शेड्यूल ईआई में, तो उसमें मेरे पास ये डालने का ऑप्शन आएगा कि दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी। नहीं, उसमें आपको आएगा एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में होगा मेरे ख्याल से। ओके, दैट इनकम फ्रॉम यूनाइटेड नेशन करके आता है वहां पे, तो यू कैन पिक दैट फ्रॉम देयर, so that will go under section 10. Okay. And if nothing is there, then others option is also there in the exempt income schedule. तो other can be chosen अगर specific नहीं मिल रहा है तो। हाँ, तो उसमें भी डाला जा सकता है। बस ठीक है, थैंक यू perfect sir, perfect. थैंक यू। तो आगे प्रोसीड करते हैं पंकज जी। क्वेश्चंस आर कंप्लीट टू दिस पॉइंट। ठीक है, डन है मैडम। लास्ट मैं भी देख रखा मैंने यहाँ पे। चलिए ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं? अगर आप अलाउ करो तो। अरे सर आपका ही प्लेटफॉर्म है। देखिए, when just to refresh, the section 139 one mandates when the total income exceeds the maximum amount, right? If that वो मैंडेट करता है सेक्शन 139 की, जब आपका टोटल इनकम एक्सीड करेगा देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश योर इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। तो जब हम ITR 3 भरते हैं तो जैसे कमीशन की बात आपने करी, टोटल इनकम की बात कर रहे हो, फिर आप हमसे बैलेंस शीट क्यों मांगते हो? बैलेंस शीट की डिटेल क्यों मांग रहे हो आप हमसे? सेक्शन 139 आपने बोला कि सेक्शन 139 में द टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट, तो देन टोटल इनकम के बारे में आप हमसे पूछो। फिर यू आर आस्किंग टू मी द फर्निश द एंटायर बैलेंस शीट व्हेन इन केस वी आर हैविंग द कमीशन इनकम और द बिजनेस इनकम, राइट? तो हमसे क्यों ये चीज पूछा जाता है? The reason is because they have got that power in the rules and regulations that they can prescribe कि what other things they can prescribe कि ये चीजें भी आपको सबमिट करनी हो सकती है, तो उसमें उन्होंने किया होगा कुछ एडिशन। कुछ क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका जो बेसिक आंसर है। anyone can answer, anyone can let me know, और मुझे बता सकते हैं। Just this question is just to refresh the law, that's it. Any honorable member can try this. मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, नहीं आया? अच्छा, चाहे हो क्वेश्चन तो आ ही गया होगा समझ में ना? आई कैन से अबाउट माई सेल्फ कि क्वेश्चन तो क्लियर है। क्लियर है, ओके। चलिए मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करके फिर उसका आंसर करता हूं। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सेक्शन 139 वन इटसेल्फ मैंडेट
कि you are only supposed to furnish your income tax return when your total income exceeds the maximum amount. They are asking to have the total income criteria. But as far as we file the ITR 3, we are having the commission income, we are having the business income. They need some financial particulars, which is just equal to our balance sheets and all other stuff, right? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर तो फिर आप वो हमसे बैलेंस शीट्स वगैरह क्यों मांगते हैं? कमिंग टू दी सेक्शन 139, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूं, इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है. लास्ट क्लॉज पढ़ते हैं सर 139 का. वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड सेटिंग फॉर सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सर ये जो सच अदर पर्टिकुलर है विच इज बीइंग नोटिफाइड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन अब सबमिट करने हैं, तो वहां पे वो बोलते हैं कि जी हमारे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी चाहिए और फाइनेंशियल डिटेल्स भी हमारे को चाहिए आपके. तो दैट इज व्हाई द बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड in response to the mandatory requirement notified by the Central Board of Direct Taxes in the forms. Up now coming to the another form, that is ITR 2 form. ITR 1 and ITR 4 we have taken up. ITR 1 and ITR 4 we have taken up. Now coming to the ITR 2. For individual and HUFs not having income from profit and gains of business or profession. In the case of a person being an individual, not being an individual to whom clause A applies, or Hindu undivided family HUF, not having income from business and profession, उसको किस फॉर्म में फाइल करना है जी? ITR 2 पिक करना है. अब ITR 2 में क्या मैंडेटरी चेंज आया है वो हम देख लेते हैं. सर कैपिटल गेन की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल गेन रिपोर्टिंग, सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ द कैपिटल गेन. वो कब कब किया है इन्होंने? कैपिटल गेन मस्ट नाउ बी रिपोर्टेड सेपरेटली फॉर द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड बिफोर अरे भाई अच्छा, बिफोर एंड ऑन और आफ्टर, यहां ऑन छूट गया भाई, ऑन और आफ्टर July 23rd, 2024 in light of the structural changes introduced by the Finance Act 2024. Capital loss on share buyback from October 24. Capital losses on share buyback can be claimed only if the related dividend income has been disclosed under the head income from other sources. Increased threshold limit, आपको पता है थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ गया. पहले एसेट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर देने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी व्हेन योर टोटल इनकम 50 लाख रुपए होता था. अब वो 50 लाख से बढ़ के 1 करोड़ हो गया है. डिटेल डिडक्शन रिपोर्टिंग अभी अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया आपसे कि 80C एंड 1013 कैपिटल ए दैट इज HRA में जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है इन डिटेल वे प्रिस्क्राइब करना है. एंड TDS के सारे प्रोविजंस आए इलेबोरेटेड शेप में, वहां पे उसको डिस्क्लोज करना है. नाउ शेयर बायबैक प्रोसीड्स, अब इन्होंने कहा जो शेयर बायबैक प्रोसीड्स हैं इसको सेक्शन 222F में पहले हम डीम डिविडेंड मानेंगे. फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 प्रोसीड्स फ्रॉम बायबैक by the domestic listed company are to be treated as deemed dividend. Section 222F in the shareholders' hands. Now, a corresponding capital loss can be reported in schedule of the capital gain, provided the deemed income is offered to the tax. मतलब ये बात यहाँ पे कही कि भाई अगर आपको डीम्ड डिविडेंड आएगा 222F में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम वो शो करेंगे. नाउ देयर इज अनदर फॉर्म दैट इज ITR 3 for individual and HUF having income from profit and gains of the business and profession. ये उसमें आ गया. अब यहां देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस हैं. दैट इज कैपिटल गेन शेड्यूल्स में ये 4 चेंजेस यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है ITR 3 में. दैट इज रेशनलाइज्ड होल्डिंग पीरियड फॉर बेटर क्लासिफिकेशन बिटवीन द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अपडेटेड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेट्स एज पर द लेटेस्ट टैक्स रूल्स, रिवाइज्ड इंडेक्सेशन नॉर्म्स फॉर कैलकुलेटिंग द index cost of acquisition and improvement, mandatory segregation of capital gain for the transaction executed before and on or after 23rd July 2024. Capital loss for buyback of the shares. Capital losses on the buyback after October 2024 can be claimed only if the corresponding dividend income is disclosed under section 222F in schedule of the operating other sources. Income threshold 50 से 1 करोड़ की लिमिट हो गई. बिजनेस और प्रोफेशन इनकम में यहाँ पे हम देख रहे हैं
एक नया सेक्शन आया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, दैट इज 44BC has been introduced to report income from the cruise shipping business. Expanded deduction disclosure is now required to deduction schedules such as section 80C, 80E, 80EE, 24B and 1013A. Taxpayers must provide specific supporting details like loan account numbers, insurance policy number and HRA details, etc. ये अपने को सबमिट करना है. Expanded virtual digital assets have been further expanded and reporting requirement for this VDA asset is there further expanded in the schedules. Now ITR 5, आपको पता है ITR 5 किस पे applicable है? For the person other than individual HUF company and the person filing ITR 7 उस पे applicable है. इस पे क्या changes हैं वो देखते हैं. Capital gain segregation by the transfer date, that is revised schedule capital gain mandate separate reporting of the capital gain transactions conducted before and on or after July 23rd, 2024, the date which the relevant provision of the Finance Act 2024 became effective. This changes enables more precise classification and tax treatment. Capital loss on the share buyback from 1st October 2024, वही similar changes यहाँ पे भी आए. Capital losses arising from share buyback may now be claimed only if the related dividend income has been previously reported under income from other source. 44BC cruise shipping की बात यहाँ पे भी करी इन्होंने ITR 5 में. ITR 5 form now includes a reference to the newly introduced section 44BC, which pertains to the presumptive taxation of the non-resident cruise operator. Under this section, 20% of the gross receipt from passenger carriage is deemed taxable. This addition ensures clear and proper disclosure of the income from the cruise shipping business, right? Mandatory disclosure of the TDS that we all know, and accordingly now coming to the ITR 6. ITR 6 applicable for the companies, we all are aware of that. Looking into this, capital gain segregation by date in schedule, companies must now report capital gain separation for the transactions executed before and on or after 23rd July 2024. Capital loss on share buyback, capital loss on the share buyback from October 24. Capital loss similarly income from other source में show करना है. 44BC वही जो पुराने स्लाइड में डिस्कस करा हमने. Revised schedule of the TDS is there, and 24B for the companies claiming interest deduction on the housing loan schedule. 24B has been expanded to capture additional information such as loan details and improving transparency. ये यहाँ तक. अब ITR 7B में देख लेता हूँ उसमें क्या चेंजेस हैं. इसमें भी सिमिलर चेंजेस हैं जो रिपोर्ट करने हैं अपने को. दैट इज कैपिटल गेन से रिलेटेड है. इनकम कैपिटल लॉस ऑन द शेयर बायबैक 24B का डिस्क्लोजर आपको क्लियरली देना है. अब मैंडेटरी TDS सेक्शन है वो यहाँ पे अपने को करना है, राइट? अप टू दिस स्टेज आशा जी वी हैव कवर्ड द इंटायर ऑल द चेंजेस दैट इज देयर इन द फॉर्म्स. क्या सारे चेंजेस आए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे. अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा कि जो सेक्शन 139 में जो लिखा हुआ है वेरीफाइड एंड वेरीफाइड इन द सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वहां पे 3 चीजें लिखी हुई है ना. यू शुड फर्निश अ रिटर्न एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. वी विल वेरीफाइड द रिटर्न एज पर द प्रिस्क्राइब्ड वे एंड सेटिंग फोर्थ सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अब वो भी रूल में है कि आपको फॉर्म कैसे वेरीफाई करना है, वो मैं आपको रूल 12(3) में दिखा रहा हूं. वो बात यहाँ पे है कि इंडिविजुअल और द HUF इंडिविजुअल और HUF अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB. कैसे वेरीफाई करना है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. एक बी देख लेते हैं. दो मोड है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर. उस पे करते हैं. वे टोटल इनकम एसेसेबल अंडर द एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर of a person being an individual of the age of 80 years or more at any time during the previous year, and for this is the return in the form number ITR 1 and 4. उसकी बात है. Electronically under the digital signature, transmitting the data electronically in the return under EVC mode, and transmitting the data in the return electronically, and thereafter submitting the verification of the return in the paper mode, that is ITR V. वो हम आगे सबमिट करते हैं. Another आपको पता ही है, other than that SSC how to come and verify the form. Company के केस में digital signature, or in any other case we can use digital signature and the other EVC mode also.
Up to this stage, we have conducted the all changes that is there in the form, how to verify the return, and what all reporting criteria reporting is needs to be submitted while filing the income tax form. अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे some common errors that needs to be avoided while filing the forms, right? What all errors are, वो एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं. कुछ फंडामेंटल एरर्स हैं जो हमारे को ध्यान रखना है, वो कौन कौन से हैं? जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. रॉन्ग असेसमेंट ईयर, जो कोई एक्सपेंडिचर है विच वाज इनकर्ड फॉर द प्रीवियस असेसमेंट ईयर, दैट वी कैन may mistake and consider that in the next assessment year, that has to be looked into. Incorrect personal information, that is mismatch in PAN, name, address, DOB, email and mobile number. Email and mobile number must pertain to the SSC itself. Please note this point. This is very important point. Choosing the wrong ITR form. जी ITR 2 जाना है, ITR 2 जाना है, बट ITR 1 चूज कर लिया. कब ये गलती होती है? हमें पता है कि यार एसएससी जो है वो ही इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, ही इज ऑल्सो होल्डिंग एन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर इन अ कंपनी. लेकिन ये दो इंफॉर्मेशन अगर आप फॉर्म पे नहीं डालते हो और उसकी सैलरी इनकम भी है कंपनी से, जो फॉर्म पिक करेगा वो ITR 1 पिक करेगा, राइट? तो और मूवमेंट यू विल फर्निश द डायरेक्टर डिटेल एंड द इक्विटी शेयर कैपिटल डिटेल, तो वो फिर अपना ITR 1 से शिफ्ट होके वो ITR 2 में आ जाएगा. देन यू नीड टू furnish the all information correctly and pick the form correctly. तो इसीलिए हमने ये लिखा कि choosing the wrong ITR form, this may also invalidate your return. Now fundamental errors में और भी है, not disclosing all income source, that is missing interest, dividend, rental income, capital gains, all income failures, form 26As, annual information statement, taxpayer information statement, डिस्क्रिपेंसी विद द ITR, यानी कि रिकंसिलिएशन की बात हम कर रहे हैं. और फॉरगेटिंग टू ई-वेरीफाई द रिटर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एन अनवेरीफाइड रिटर्न इज एन इनवैलिड रिटर्न. द मोमेंट यू फाइल द रिटर्न यू नीड टू वेरीफाई इट इमीडिएटली, क्योंकि अब 30 दिन का टाइम पीरियड रह गया हुआ है. सम कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल फाइलिंग ITR फॉर्म में, कुछ स्पेसिफिक इनकम एंड डिडक्शन एरर है पार्ट 1 का. इनकरेक्ट टैक्स रिजीम सिलेक्शन, न्यू टैक्स रिजीम इज अ डिफॉल्ट फॉर assessment year 2025-26, right? Mistakes in capital gain reporting, जो अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया आपसे, वो क्या गलतियां हो सकती हैं? इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, मतलब कैपिटल गेन डेट की वजह से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो जाएगा. स्पेसिफिक रिपोर्टिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट रिडीम्ड आफ्टर 23 जुलाई 2024 एंड नॉट रिपोर्टिंग फॉरेन एसेट्स इनकम DTA करेक्टली. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज ही नहीं करते, despite of the fact कि form reporting is mandatory. Bullet points for specific income and deduction error, that is wrong classification of the income head, freelance income under the salary head, wrong. ये claiming deduction without proof, that is also very important. अब आज के डेट में तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते. Incomplete bank account detail, अब all active account is required to be reported, उसमें अकाउंट नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए. कई बार 16 डिजिट अकाउंट है, हम 14 डिजिट डालते हैं, शुरू के 2 0 नहीं डालते, so that may create an error and your forms may become invalid. Coming to this, there may be some technical errors जो ध्यान रखना है. Login and OTP issues, e-verification failure, bank account not validated for refund, error with pre-filled data, problem with offline utilities and ignoring notices. These all are the important points that is related to our form. Now I am with best practice, कुछ चीजें मैंने और भी डाली हुई हैं जो आप क्या बेस्ट प्रैक्टिस हमें फॉलो करना चाहिए. दिस इज ऑल द कॉमन थिंग्स. स्टार्ट अर्ली, कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, रिकंसाइल थोरोली विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द पोर्टल, अंडरस्टैंड द टैक्स रिजीम, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. रिव्यू प्री-फिल्ड डेटा, वैलिडेट बिफोर सबमिशन, ई-वेरीफाई इमीडिएटली एंड द कीप रिकॉर्ड. ये एक हायरार्की हमने बना रखा है अपने लिए. इस प्रोसेस में हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं accordingly. Now coming to this part, another point that I have mentioned here is for the non-resident. Non-resident के कुछ important चीजें मैंने यहाँ पे टेकअप करी है कि non-resident को कब रिटर्न फाइल करना है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, वो मैंने थोड़ा बताया, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. Returns and the forms applicable for the salaried employee for the assessment year 2025-26. Non-resident individual is an individual
who is not a resident of the India for the purpose. इसका ये कहने का मतलब है, in order to determine whether an individual is a non-resident or not, his residential status is required to be determined under section 6 of the Income Tax Act, जो जैसे हमने नीचे डिस्कस करा हुआ है, वो क्या है कि आपको पता है कि he should be in India, अगर resident है in India, he should be in India for 182 days or more during the previous year, or if he is in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 year immediately preceding the previous year. ये तो basic conditions होते हैं कि an individual who does not satisfy both the conditions as mentioned above will be treated as a non-resident in that previous year. ये conditions check करना है अपने को. However, in respect of an Indian citizen and a person of an Indian origin who visit India during the year, the period of 60 days as mentioned in 2 above shall be substituted with 182 days. The similar concession is provided to the Indian citizen who leaves India any previous year as a crew member or for the purpose of employment outside India. अब देखिए फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ और अमेंडमेंट आया था. वो क्या अमेंडमेंट था हम आपको बताते हैं कि has amended the above exception to provide that the period of 60 days mentioned in 2 above shall be substituted with 120 days if an Indian citizen or the person of the Indian origin whose total income other than income from the foreign sources exceeds the 15 lakh during the previous year. Or the Finance Act 2020 also introduced the new section 6(1) capital A, which is applicable for the assessment year 2021-22. It provides that Indian citizen earning total income in excess of 15 lakh other than income from the foreign source shall be deemed to be resident in India if she is not liable to pay tax in any other country. ये अपने को ध्यान रखना है. अब नॉन रेसिडेंट में कौन कौन से फॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे जो देखने वाली बात है. 1(3) मैं सैलरीड एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं. 1(3), 12B, 16, 16A और 10E, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब टैक्स इंसिडेंस इन विच केस, इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट क्या क्या टैक्स इंसिडेंस एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर. इनकम और टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट. इनकम विच अक्रूज और अराइज इन इंडिया is taxable. Income which is deemed to accrue or arise in India, accrue or arise, deemed to accrue or arise, taxable. Received in India, deemed to be received in India is taxed. Income accruing outside India from a business controlled from India or from a profession set up in India is not taxed. And income other than above, income which has no relation with India is not taxed in India in the hands of non-resident. अब ये एक फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हमने डाला है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ दी कैटेगरी. इस कैटेगरी में डिटेल रिक्वायरमेंट क्या क्या आपको फर्निश करना है, वो एक ही चेकलिस्ट हमने बनाया हुआ है. जो चेकलिस्ट हमने यहाँ पे लगाया था वो डिस्कस करते हैं. फॉरेन डिपोजिटरी एसेट अकाउंट, फॉरेन डिपोजिटरी अकाउंट है तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन फर्निश करना है उसमें. जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. कंट्री, बैंक नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, ओनरशिप टाइप, पीक बैलेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोजिंग बैलेंस, इंटरेस्ट अर्न्ड कितना है इसमें. फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट्स अगर कोई है, देन कंट्री, इंस्टीट्यूशन नेम, अकाउंट नंबर, पीक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इनकर्ड, इनकम अक्रूड, ये भी आपको इसमें ऊपर लिखा है इनकम अर्न्ड, इसमें लिखा है इनकम अक्रूड. फॉरेन इक्विटी एंड डेप्ट इंटरेस्ट, ये देखना. डिटेल ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, पार्टनरशिप अब्रॉड, कंट्री, एंटिटी, नेम एंड एड्रेस, ओनरशिप परसेंटेज, value at the year end, peak value, income earned, etc. is required to be reported in foreign equity and debt interest. And foreign insurance and annuity contract अगर है तो, then country insurer, name and address, policy number, investment annuity value, peak value, closing value and income accrued, ये सारे रिपोर्ट करने हैं. Foreign immovable property, country, address, type, date of acquisition, ownership percentage, total cost, current value, income, rent है, gain है, ये सब आपको देना है. Foreign other capital asset, country description, jewelry, art, vehicle, yachts, etc. Date of acquisition, cost, current value, income earned, etc. Foreign accounts with signing authority, जो शेड्यूल जो प्रोविजन 4 में भी ये बात करी हुई है. Country, institution name and address, account number,
nature of authority, peak balance, closing balance. Foreign trust and entity, country, name and address of the trust and entity, nature of interest, income accrued, value of interest. ये देना है. Any other foreign source income, country, type of income देना है, gross income, tax paid abroad if any. Liabilities relating to foreign asset, liabilities relating to foreign asset भी अपने को disclose करना है. That is country, loan overdraft detail, institution name, amount outstanding and the purpose. These all are the important structure that is to be reported. अब इसमें एक स्ट्रक्चर मैंने फॉरेन डिपोजिटरी अकाउंट का मैंने यहां पे दिया था, यही चीज मैंने ऊपर लिखा था और वही चीज मैंने यहां पे डिस्क्राइब करा है इन कॉलमनर शेप में. नेम, कंट्री कोड, नेम, एड्रेस, जिप कोड, अकाउंट नंबर, स्टेटस, अकाउंट ओपनिंग डेट, पीक बैलेंस देना है, क्लोजिंग बैलेंस देना है, ग्रॉस इंटरेस्ट देना है. ये सारी चीजें फॉरेन एसेट एंड इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अपने को है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैडम, एनी क्वेरी? Yes sir, few Now- queries I have posted in the chat box. तो मैं देखता हूँ उसको. कुछ WhatsApp पे आई थी, कुछ कहीं पे, तो मैंने सब वहां पे एक जगह पे डाल दी एक एक करके. तो मैं रीड आउट कर दूं आपके लिए? हाँ, आप बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, या मैं वेदर तो डीएससी एक एक करके कर लेते हैं. मैं रीड आउट कर देते, थोड़ा इजी हो जाएगा. जी. First question is, we have remitted around 81,000 abroad, but no TCS was deducted. Should I show this in my ITR 1? And if no, then does it make any difference even if I still show it under schedule TCS with zero TCS? नहीं, शेड्यूल टीसीएस में आएगा तो उसका डिडक्शन का तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना आपको. नहीं, बट यहाँ पे लेकिन सिंपली लेकिन है अब उनका तो कि ये रेमिट किया है. रेमिट रेमिट कराना में तो देयर इज there नो is no need. एट ऑल, क्योंकि आप अपने इनकम से रेमिट कर रहे हो ना उसको. राइट, ठीक है सर. इनकम पार्ट्स करेक्टली डिस्क्राइब होना चाहिए. Then next question is, next query is, one of my client is entrepreneur. She is getting small business income in her account, and in another account she is getting transfer from her husband monthly amount for some home expenses. So how should this home expenses amount from her husband should be reported in the ITR, and which ITR should मैडम, जो she file? खर्चा जो हस्बैंड से वाइफ को पैसे आते हैं खर्चा करने के लिए, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्ट में, वो टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि वो पैसा हस्बैंड के हैंड में ऑलरेडी टैक्सेबल है. राइट मैडम? अगला क्वेश्चन मैडम. और ITR यहाँ पे ITR 3 या 4 डिपेंडिंग ऑन 44 AD ऑफ डिपेंडिंग कर रहे अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यू आर हैविंग विद. राइट? हैं. नेचर ऑफ इनकम क्या है जो अभी हमने डिस्क्लोज किया था ऊपर? बिजनेस बिजनेस Business का है. ताकि छोटी छोटी बिजनेस इनकम आ रही है. बिजनेस इनकम है ना, तो आपका प्रिजम्पटिव में जाना है या नहीं जाना है, ये कितना टोटल इनकम कितनी है आपकी? अमाउंट नहीं मेंशन है, स्मॉल बिजनेस इनकम लिखी हुई है. स्मॉल बिजनेस इनकम, देन यू कैन गो फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. बिजनेस इनकम है ना आपका. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू रिपोर्ट द टर्नओवर इन केस ऑफ F&O लॉस. एक्चुअल ट्रांजेक्शन इन सेल 8 CR, परचेज 9 CR, नेट लॉस 1 CR, बट जो एब्सोल्यूट अमाउंट है ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस जो टर्नओवर के लिए चेक करते हैं, दैट इज 4 एब्सोल्यूट crore. वैल्यू कितनी है उसकी? फ्यूचर एंड 4 CR 4 CR. हाँ. तो हाउ टू रिपोर्ट इन ITR 3? आईटीआर 3 मैडम टैक्स क्या कहते हैं, आईटीआर 3 में आप प्रॉपर पी&एल बैलेंस शीट आपको बनाना है. तो P&L बैलेंस शीट जब P&L बनाएंगे वहां पे सेल में 8 CR दिखाएं एंड परचेज में 9 CR दिखाएं, तभी वो लॉस नहीं नहीं, आएगा 9 निकल सीआर के. क्यों दिखाएंगे मैडम? एब्सोल्यूट वैल्यू में वो 9 सीआर बैलेंस शीट के लिए थोड़ी ना है, वो तो अब लिमिट लेकिन चेक कर रहे हैं. लेकिन एब्सोल्यूट, हाँ, absolute- दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज योर टर्नओवर, वो वैल्यू हो गई ना. हाँ, जो नेट टर्नओवर हो गया वो कितना हो गया? जो एब्सोल्यूट है प्रॉफिट और लॉस को प्लस माइनस करके, दैट इज 4 करोड़. हाँ, दैट इज द 4 करोड़. हाँ. ठीक है, तो उसमें आपने जो वैल्यू लोगे उसकी वैल्यू आप कैसे लोगे? वैल्यू लेने के लिए आपका जो ट्रांजेक्शन है, सेल अमाउंट वो 8 CR है. वो कितना 8 सीआर है, माइनस कितना आ रहा है आपका? परचेज कितना 9 CR परचेज, तो 9 आपने CR अकाउंटिंग करी हुई है उसकी? मे भी की होगी. अका- क्वेश्चन क्योंकि नहीं, मेरा नहीं। नहीं है ये वाला, मेरे पास आए हैं क्वेश्चन. नहीं, क्वेरी में तो ये तो इलेबोरेटेड क्वेरी है ना, वो तो देखना पड़ता है कैसे आपने करा है, क्योंकि इंट्राडे रिपोर्टिंग का अलग है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस सेक्शन 43(5) में उसकी अलग रिपोर्टिंग है,
फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप लेते हो तो दैट इज यहाँ पे एफ एंड ओ है लिखा हुआ, एफ एंड ओ लॉस। एफ एंड ओ का मतलब हो गया बिजनेस इनकम है, तो इनको हाँ, प्रॉपर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी मैडम। और ये जो प्रॉपर बैलेंस P&L शीट बैलेंस। बनाएंगे तो आईटीआर में सेल में ये 9 CR, सॉरी 8 CR एंड परचेज में 9 CR दिखाएंगे, सो दैट वो 1 करोड़ का लॉस वहां पे दिखाई दे। नहीं तो लॉस इनका जो आया हुआ है, लॉस कैसे आ रहा है, लॉस लॉस कैसे डिराइव कर रही है वो, दैट यू आर नॉट, एक बार वो भी तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है चेक करने का, राइट? क्योंकि जब आप P&L बनाओगे तो उसमें ऑटोमेटिकली और भी खर्चे आएंगे ना, ठीक है। वहां पे दिखेगा वो। तो ये बिजनेस इनकम की तरह आपको लेके जाना पड़ेगा और प्रॉपर इसका P&L बनाना पड़ेगा उसमें, अदरवाइज। नेक्स्ट। हाँ बताइए। नेक्स्ट इज वेदर डीएससी इज मैंडेटरी फॉर फाइलिंग फॉर्म 10F। DSC आजकल तो फॉर्म 10 तो मेरे ख्याल से OTPC से फाइल हो जाता है 10F में भी, और इट्स मैडम। नॉट 10F का जरा रिलेटेड टू द बताओ क्या, आईटीआर आल्सो आई थिंक। 10F 10F किसकी बात कर रहे हैं, एक बार मुझे बताइए, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। 10F शायद 15 CB के लिए है आई थिंक। इफ एनीवन एल्स कैन आंसर कि नॉन 10F रेसिडेंट किसके लिए होता कंट्री है। के लिए होता है ना 10F मैडम। Document DTAA filed और by the उसके कुछ individual and the बेनिफिट के लिए। company is generating revenue from non-resident countries to हम्म, claim the benefit of double taxation avoidance agreement। ये हाँ, वाला ही है ना, इसी 10F की बात कर रहा हूं मैं। 10F तो रिड्यूस टैक्स रेट ऑन ऑल। हाँ नहीं, उसमें फिर आपको DSC मैंडेटरी होगा। ओके, हम्म, ठीक है। कंपनी के केस में तो मैंडेटरी होगा ही। अच्छा, then another question is कि in case of Indian ITR financial year is from April to March, foreign countries like USA have calendar year, so what to report in schedule FSI and FA, foreign source income and foreign assets, like वहाँ का calendar year 24 खत्म हो गया, मेरे यहाँ पे वो March 25 का पीरियड खत्म हो रहा है मैडम 9 जब महीने ITR फाइल प्लस कर रहे 3 महीने, 9 महीने प्लस 3 महीने की जो आपकी रिपोर्टिंग है ना, वो हैं। वहां हाँ से पिक करना पड़ेगा। वहां जनवरी टू दिसंबर है, तो फिर हाँ, आपको जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल से दिसंबर पिक करना पड़ेगा, फिर अगले साल का आपको जनवरी से मार्च पिक करके वो आपको बनाना पड़ेगा, ईयर टू ओके ईयर डेट करके बनाना पड़ेगा। ओके, मीन्स कि हमें जो हमारी आईटीआर जिस पीरियड की जा रही है उसी पीरियड का पूरा इनकम अपने को हम हाँ, वहां से उसी डिराइव पीरियड का करना हम है। डेटा रिपोर्ट करेंगे उनको, ठीक क्योंकि है। वो पीरियड तो होगा ही ना। एंड सेम थिंग फॉर फॉरेन असेट्स आल्सो एज ऑन 31 मार्च, वहां पे कौन सा अकाउंट है, कौन सी होल्डिंग है, यस, क्या चीज वो है, अपने उसकी को वैल्यू इंडिया में रिपोर्ट करना है, वो एज अपने ऑन को इंडिया थर्टी में फर्स्ट हमारे, मार्च की डेट पे लेंगे। हाँ हमारे में इंडिया को रिपोर्ट करना है 12 महीने, तो वही 3 मंथ्स और 9 मंथ्स का वो बना करके, बेस बना करके। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पर्सन सिटिंग इन इंडिया earn certain income from foreign country for services given from India, online service दी है। तो is it a foreign income which is required to be reported in schedule FSI? हाँ फर्स्ट तो मैडम, क्वेश्चन। हाँ हाँ फॉरेन इनकम इनकम टैक्स में तो आएगा ही ना, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आ तो बाहर से ही रही है, बट उसके हाँ बाद ये लिख रहे हैं कि व्हाट इफ पर्सन इज नॉट इवन होल्डिंग पासपोर्ट, बिकॉज वहां पे या तो मैडम, इनकम ले, पासपोर्ट या हाँ, TIN नंबर देना होता है। नहीं तो इनकम रेंडर जो कर रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गई ना वो। एक्चुअली ये केस कहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे जैसे सैलरीड क्लास है और वो ऑनलाइन बैठ के कुछ मैं वही चीज आईटी आपको रिलेटेड बताने लग सर्विसेज गया दे था दी हैं। अभी, ये वो वाले केस हैं जैसे यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम्म, राइट? और कुछ जैसे कि हम इंडिया में बैठे हैं, सपोज करो मिस्टर XYZ का पासपोर्ट नहीं है, लेकिन दे हाँ हैव अ गुड कनेक्शन इन आउटसाइड कंट्री, दे हाँ, हैव एग्जैक्टली। गेट सम वर्क फॉर देम, इन्होंने सर्विसेज रेंडर करी, वहां से इनको का पैसा आ गया, हम्म तो दैट इज ऑल इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में फॉल हम्म करेगा, और दैट हम्म इनकम इज टू बी देयर इन इंडिया, तो उसको इनकम टैक्स अपने हिसाब से लेकर के और वो डिस्क्लोज, क्योंकि वहां पे आ रहा ना बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, वहां पे होगा उसका। हाँ, और फॉरेन सोर्स में भी है, बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पे जब पासपोर्ट नहीं है, वहाँ दो ऑप्शन है, एक पासपोर्ट और एक कुछ शायद TIN है टैक्स, वहाँ का, वहां का टैक्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। टैक्स तो नंबर होता है हाँ, तो अब उस एक। केस में फिर क्या वहां पे मेंशन किया जाए जिससे कि वो डिस्क्लोजर भी ठीक हो जाए एंड नहीं उसमें तो देखो, अगर आपके पास जो जिसके पास में टैक्स नंबर इंडिया का है, तो वो तो इंडिया का ही नंबर डालेगा ना, वहां पे उसका फॉरेन सोर्स फॉरेन। शेड्यूल में तो फॉर जो FSI शेड्यूल है वहां पे पासपोर्ट या फिर TIN, इन दोनों में से कोई एक चीज मांग रहा है, एंड हाँ पैन एक्सेप्ट नहीं कर रहा वहां पे। ठीक है मैडम, मैं नोट कर लेता हूँ ये क्वेरी, क्योंकि आपको ये लेटर ऑन क्वेरी बेसिकली मेरे ही एक नोन फ्रेंड की थी, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल मुझे पता है। अच्छा उसने मेरे से ही पूछा था, तो मैंने कहा यार देखते हैं इसमें क्या है, आपसे भी एक बार। ठीक है, इसको तो एक बार और आप, चेक कर लेंगे।
हाँ, एक बार प्लीज इस चीज को चेक ना। कर लेंगे इसको फोन क्या है, क्योंकि ये यूनिक सी क्वेरी है। हाँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है सर, ये रिलेटेड टू टैक्सेबिलिटी एंड नॉट डायरेक्टली टू द आईटीआर, इफ यू आर हाँ बताइए okay बताइए, to कोई बात नहीं। answer this. हाँ हाँ बताइए, Is the मैं reimbursement of certain expenses like telephone, Wi-Fi, etc. on the basis of bills by the employer to employee? हाँ So whether this is to be considered as salary or perks and liable to tax? नहीं, वेदर इट्स अ एक्चुअल ऑफिशियल यूज रिम्बर्समेंट और इट्स अ पर्सनल Basically, रिम्बर्समेंट। what is happening is sometimes company give a CTC of the record. Okay, this much is your total CTC and just give us the content कि आप कैसे कैसे इसको लेना चाहते हैं. So what some employees are doing, they are submitting certain expenses bill and getting that reimbursed from their employer, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ योर परक्यूजिट, part of और उस पर salary. टीडीएस भी कटेगा। नहीं नहीं, that company is not doing. दैट They are इज just कंपनी इज they नॉट they डूइंग, दैट इज रॉन्ग एट द कंपनीज पार्ट। they are 194 आर में simply टीडीएस काटना था, हाँ, टीडीएस नहीं they are कटा, simply दैट इज रॉन्ग। writing it as their company's expenses and reimbursing it to the employee on the राइट, basis of the bills, because might be that bill are in the name of company. नहीं नहीं, इट मींस कि दिस इज द कंपनी एक्सपेंडिचर। अगर दे आर नॉट डिडक्टिंग टीडीएस, दैट मींस कि दे आर देयर डिस्क्लोजर इज नॉट करेक्ट, दे आर मिस इंटरप्रेटिंग दिस, राइट। Mhm. तो अकॉर्डिंगली इनका ये एक्चुअल परक्यूजिट है जिसको दूसरे शेप में वो पे कर रहे हैं। Right. So far as employee is concerned, it's an income under the 100%, salary, right? 100%, 100%, इट Okay, शुड बी sir. द पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि वट एवर इज द रीजन, ये तो आपका ही पैसा है, आपकी कमाई है। Right. आप अपनी सैलरी कम दिखा रहे हो उसकी वजह से, हाँ, पर तो यही रहे. है ना, अल्टीमेट है नई तो नई आपकी चीजें सैलरी। ढूंढते हैं सैलरी क्लास में सब. So there is one more question from Sarika ji. She is asking, can we file ITR-U return if the और scrutiny what? notice received or started? नहीं, वहां पे आईटीआर 1 में कंडीशन है मैडम, 139(8) कैपिटल ए क्लॉज 4 एंड 5, वहां पे उन्होंने क्लियरली ये बात कही हुई है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में आप वो नहीं कर सकते। आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपके पास में ये चार चीजें ना हो। मैं बताता हूं, अभी 2 सेकंड। 139 139(8)A में है, ये प्रोवाइजो में आई प्रोवाइजो में नहीं है, वो नीचे लिखा हुआ है उन्होंने। अगर सर्च सीजर चल रहा है, स्क्रूटनी चल रही है, और भी कुछ चीजें उसमें हैं, तो फिर आप यू कैन नॉट फाइल दैट। आप उसमें तब आप नहीं कर सकते अपडेट, अदरवाइज आप उसको अपडेट कर सकते हो। मैं भी बताता हूँ आपको, मुझे 2 सेकंड का टाइम दो आप। जी मैडम देखिए, ये उस केस में है, 8A की बात हम कर रहे हैं। अपडेटेड रिटर्न 48 मंथ्स में हो गया। अब आपका देखिए, जो फर्स्ट सेकंड प्रोवाइजो है, वहां पे लिखा हुआ है ये बात, that a person shall not be eligible to furnish an updated return under this subsection where a search has been initiated under section 132 and 132A. Survey has been initiated under section 133A, subsection 2A. A notice has been issued to the effect that any money, bullion, jewelry, or valuable article or things seized or requisitioned under the section 132, 132A, इन दैट सर्कमस्टांसेस जब आप फॉल करते हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल। आपका क्वेश्चन क्या था मैडम, कि वो कहाँ फॉल स्क्रूटनी किया उन्होंने? स्टार्ट हो गई है, तो कैन दे फाइल ITR-U? नहीं, स्क्रूटनी किस सेक्शन, सेक्शन 143(3) की बात कर रहे हो 143(2). क्या? नहीं, असेसमेंट इस 142 डायरेक्ट थोड़ी होगा मैडम, 143(3) हो रहा होगा, असेसमेंट हो रहा होगा ना उनका। सारिका जी, कौन से सेक्शन में नोटिस आया है? 143(3) में असेसमेंट हो रहा होगा। 143(2)/142(1). हाँ नहीं नहीं, आपका 143(3) में असेसमेंट शुरू होगा, उस पे 142(1) मांगा होगा उन्होंने डिटेल देने के लिए, या 140। हाँ करेक्ट, शी इज सेइंग यस. यस ठीक है ना, ये उसी बेसिस पे है। तो कैन दे फाइल ITR-U? आईटीआरयू अपडेट इसमें मैडम 143(3) की बात यहाँ पे अभी प्राइमा फेसिया मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन आप प्रोविजन अपडेट तो हम कर ही सकते हैं इफ यू लेटर ऑन रियलाइज्ड। नहीं, स्क्रूटनी होना एक अलग चीज है, लेकिन अब आपको रियलाइज हो गया तो यू कैन अपडेट, जहां तक मुझे लग रहा है।
ओके, हाँ, क्योंकि वो यहाँ नेक्स्ट। पे वो हाँ। सर्वे वगैरह का नहीं है ना, 142 143 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम रजनी जी। इफ वी फॉरगेट टू ई वेरीफाई रिवाइज्ड आईटीआर ऑफ AY 23-24, देन इनवैलिडेट, व्हाट कैन बी डन नाउ? इनवैलिडेट हो गया, वो रिटर्न ही हट गया होगा वहां से, पोर्टल पे रिफर आ नहीं रहा होगा। दैट अपडेट करो रिटर्न मैडम, रजनी जी अपडेट, कैन कंफर्म कि पोर्टल पे अपडेट, आ रहा है नहीं आ रहा। अपडेट रिटर्न। Sir, can I ask you one question? यस मैडम प्लीज। So last year I forgot to file that form for opting the old regime, right? राइट, And I had filed the form, but it is after the due date, that is like 31st July, right? So while assessment under section 143(1), they had assessed my return as per the new regime, because I had filed the that form later the due date, right? And I had filed the return as well after the 31st July. So is there any corrective action I can do for last year? नहीं, कैन यू कम अगेन विथ योर क्वेश्चन प्लीज? सर बेसिकली हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है ना, क्या नाम है उस फॉर्म का, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द फॉर्म. 10 IEA। Right. 10 IEA. I had filed the form 10 9EA for opting the old regime ओके, after 31st July. Right? After 31st July, I नहीं can't नहीं, आपका file रिटर्न वो, 10 IEA. नहीं नहीं, वो आपने आफ्टर 31 जुलाई फाइल किया होगा, तो आफ्टर द ड्यू हाँ. डेट फाइल किया आपने, तो आपका रिटर्न उन्होंने न्यू रिजीम में एसेस कर दिया होगा। Right. करेक्ट। And अब they आगे had बताइए। created a demand क्योंकि मैंने तो old regime में अपना नहीं ATC नहीं नहीं नहीं, वगैरह का आप आपने बेनिफिट गलत लिया किया था. था, क्योंकि उस वहां पे क्लियरली मेंशन होता है, जब आप डिक्लेरेशन देते हैं 10 IE फाइल करते हुए, कि आप इसको ऑन और बिफोर द ड्यू डेट और द एक्सटेंडेड डेट आप 10 IE फाइल कर रहे हो। I agree to you, but I know that was like slipped from my mind. For other assessees, I had done it in that मैडम, way only. But for that particular case, टिफिन, any corrective गेटिंग अ action स्नो। can be taken. और वैसा करते हैं जरा, आपके माइंड से निकल गई बात, अब वो कौन सुनेगा? वही तो मैं कह रही हूँ, मतलब और कि what देखिए, should I do? गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली जब सामने से नहीं, कहते कि They अपने had माइंड से आपको नहीं निकल created a गई। मिलेगा मैडम। demand of 80,000 against that thing. Basically, that is a problem. बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, जबकि मैं, आशा जी, मैं अपने हर प्रेजेंटेशन में टैक्स रिजीम को लेके बहुत ज्यादा अवेयर करता हूं कि भाई अपने को करेक्टली चूज करना है। आपने देखा मैंने समरी में भी ये लाइन लिखा हुआ है, एग्जैक्टली। राइट? इवन दो मैडम प्रियंका जी, ये जनरली हो जाता है। इस बार तो इतने क्वेरी मेरे पास आए हैं, सर बच्चों ने गलती से वो फॉर्म फाइल कर दिया, सर गलती से फॉर्म फाइल हो गया। मैडम वो फॉर्म 3 पेज का फॉर्म है, जब तक आप एक ऑप्शन नहीं दबाते अगले ऑप्शन पे आप नहीं बढ़ोगे, नहीं, अग्रीड राइट? आपकी बात. That is इस just a बार negligence, एक nothing more और than that. इस बार सर एक एक और क्वेश्चन इशू मेरा क्या भी है। हुआ है। हाँ, एक मिनट, दिनेश। प्रियंका जी का कंक्लूड करते हैं, हाँ, फिर अगला क्वेश्चन प्रियंका लेते जी। हैं। यस प्रियंका जी प्लीज। Sir, मतलब nothing can be done. I have to pay off the demand, right? Whatever their demand they are arising, right? दिस इज फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। Yeah, नहीं, assessment year 24-25. अच्छा, आपने जो लेट फाइल किया था उसका क्या रीजन था मैडम? सर बेसिकली उनका ना 26 CS में एक TDS था. This other party has not deposited the TDS return, right? That's why for availing the TDS benefit, we had filed the return later. नहीं, दैट इज फाइन, यू हैव फाइल्ड द रिटर्न बिल लेटर, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर एंड वैलिड रीजन फॉर फाइलिंग द फॉर्म आफ्टर द ड्यू डेट, दैट इज 10 IEA फॉर्म की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब मतलब वो 10 IEA जो मैंने फाइल किया, वो मैंने ITR के साथ ही फाइल किया. द किस डे डेट आई को हैड फाइल किया फाइल. था? किस डेट को फाइल किया था? सर आई हैड दो, गिव मी अ मिनट, I'll confirm you the date. 2 मिनट. चलो आप ऐसा करना मैडम, एक बार टेक्स्ट करना मुझे, ठीक है? ओके. जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा, आई विल लुक इनटू दैट एंड विल लेट यू नो। मेरा नंबर है मैडम, ये नोट कर लो, 9899407778। इस नंबर पे मुझे टैक्स कर देना। इफ ठीक है एनीथिंग सर. वुड बी देयर, आई विल लेट यू नो। पंकज जी, आप ठीक है स्लाइड्स सर. शेयर करेंगे क्या हमारे साथ? मैडम नीड है, आप लोग तो नीड है क्या? अब क्या जी। आईटीआर के सारे सर एक डिटेल्स तो क्वेश्चन सबों ने मेरा भर भी दिए था। हैं।
अब क्या करोगे स्लाइड लेके, बट इवन इफ यू रिक्वायर्ड सर अभी कहाँ, अभी तो 10% हुआ है, आप ये कैसे कह रहे हो आप- कि मुझे तो लग सबने रहा है फाइल कि कर सबों दिया? ने, आप शेयर कर दीजिएगा सर, वी विल मुझे तो लग रहा शेयर इट मैं विद मेरे द ही रिटर्न्स रह पार्टिसिपेंट्स। गए हैं, बाकी सबों ने फाइल कर लिए। नहीं अच्छा, नहीं, आपके रिटर्न है सर? ऐसा नहीं है, सबके साथ नहीं यही सर, यहाँ केस भी है। पेंडिंग है। चलो दिनेश जी, आप कोई क्वेश्चन हाँ पूछ सर, रहे हैं? और कोई दिनेश शर्मा क्वेरी? जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन मेरा यस था सर। मैम। जैसे एक पार्टी ने सर थोड़ा सा 2005 में लाउड। 3200 गज। सर सर आप आवाज ठीक आ धीरे रही आ रही है आपकी बहुत। आप ठीक आ रही है? हाँ बोलिए। एक पार्टी ने ना 2005 में 32 गज एरिया खरीदा, प्लॉटिंग खरीदी मतलब। अब वो सेल है ना, टुकड़ों में कर रहा है उसको, मतलब 100 गज कर दिया, 200 गज कर दिया, और दोबारा वो प्लॉट ही खरीद रहा है। तो क्या उसको हम एक ही बार उसका वो मिल सकता है ना हमारे को डिडक्शन, या मल्टीपल ले सकते हैं हम? क्या क्वेश्चन दोबारा दोबारा रिपीट करिए, कि आपने एक प्लॉट खरीदा? हाँ, 3200 गज, सपोज करो 3000 गज मैंने प्लॉट खरीद लिया सर। सर थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही मेरे तक। ही इज सेइंग कि एक 3000 गज का एक प्लॉट खरीद लिया एक बार अच्छा में। ठीक है, 3000 गज अब का एक प्लॉट। अब उसको वो छोटा छोटा प्लॉटिंग करके अलग अलग बेच रहे हैं, जैसे सर 300 गज का, ये 300 गज बिजनेस का इनकम, ऐसे। ये बिजनेस कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ हाँ। तो क्या अब क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ अब सर अगेन उन्होंने प्लॉट खरीदा उसी से, जैसे मतलब 100 गज उन्होंने बेचकर फिर 100 गज दोबारा ले लिया, प्लॉट ही खरीद लिया। तो हम्म। जस्ट लाइक बिजनेस ही हो गया ये। तो वो कह रहे कि नहीं, इसका वो लेना चाहिए, डिडक्शन ले लो आप इसकी, हमें टैक्स नहीं पे करना है। नहीं, आप मुझे ये बताओ, जो आपने 3000 गज का जो प्लॉट खरीदा था, हाँ इसकी जी। प्लॉटिंग करके इसको स्टॉक इन ट्रेड बनाया था क्या बुक्स में? बुक में क्या ट्रीटमेंट किया हुआ है आपने? सर बुक में तो नॉर्मली पार्टी ने, एक्चुअली क्या पार्टी मेरे पास बाद में आई है, तो उसने नहीं, पहले ही पहले कुछ आप बी रिटर्न। स्पेसिफिक ना, कुछ क्वेश्चंस, मतलब यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि भाई ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि सी देयर इज सेक्शन 214, देयर इज सेक्शन 28 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन ओके 214 स्पीक्स अबाउट द कैपिटल एसेट एंड द सेक्शन 28 स्पीक्स अबाउट योर बिजनेस इनकम, राइट? अब ओके। आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, दैट कुड बी that could be answered on the basis of actual fact. It could not be answered randomly, right? So I required you to kindly send your query on my phone, and then we will let you know with the entire fact, right? ठीक है ठीक है वो ठीक है, सिंपली डन डन। एक उससे नहीं इसका आंसर सही आ हाँ, पाएगा। ऐसे आई नहीं एग्री दिया जा विद सकता। पंकज जी। हाँ। जी जी जी। Any तो other question, sir? all the questions have been answered. So if anyone else have any question, we can wait for 20 seconds if Can anyone want to ask. something But which I please keep it short. okay, yeah, Yes. Who is asking? Meenu. Meenu ji? Yeah. So Yes, my please. like I used to fill ITR 4, and this I mean last year, financial year 24-25, I had no income, and the next year also I have no income and I don't plan to work. So I just had income from other sources. I can fill ITR 1, right? Right. But I do have GST purchases, that is a membership fee of CA and CS Institute. It's showing in GST purchases, but that's okay, right? That's okay. Okay, Do you just have do you have a GST revenue with you? You are also registered with GST. zero. Yes, but the revenue is zero. Your revenue is zero. You are just having only a GST purchases like membership fees and others. No, Are you a only GST membership. supplier? Hanji? Do you have a GST number? Yes, I Yes. do have GST number, but I just have only membership fee, no other purchases. Okay, so what? You want to take, आप बैलेंस शीट बना रहे हो, इनकम ले रहे हो, कैसे? आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही है ना आपका, मैडम? हाँ, वो मेरा अदर सोर्सेज है, मुझे बैलेंस शीट नहीं बनाना, मुझे अगले साल भी, इस साल भी काम नहीं किया है। आपकी और क्वेरी क्या है स्पेसिफिक, मुझे क्वेरी बताओ आप। यही है कि मैं ITR 4 भर सकती हूँ ना, बिकॉज ऑल माई इनकम इज शोइंग देयर एंड आई डोंट वांट टू क्लेम एनी लॉसेस, बिकॉज अगर वो मैं लेती हूँ, मेरे परचेजेस आ गए, तो मैं फिर वो सब भरूंगी, वो लॉसेस आ जाएंगे, पता नहीं आगे भी करूंगी नहीं करूंगी। सो आई कैन जस्ट फिल ITR 1, राइट? हाँ यू कैन, बट वहां पे आप डालोगे ना, तो अब आपकी जो इनकम, अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही इनकम है आपकी। हाँ, वो भी थोड़ी सी है, बस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही है, वही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, दैट्स इट। The Okay. query is basically कि just because की GST form number cons- she is holding, हाँ, there is no revenue as such from the business head,
and only other sources income is there, तो can she file ITR 1 or नहीं, is इनकी ये this क्वेरी है, ITR 4 भरना है उन्हें। नहीं नहीं नहीं, ITR 1 भरना वन for वन वन अच्छा, ITR 1 भरना है। हाँ हाँ जी। लेकिन आप बिजनेस, आप तो जीएसटी नंबर ले रखा है ना आपने, बिजनेस एसएससी हो, अदरवाइज आप yes नेचर ऑफ बिजनेस आप डालोगे ना वहां पे, तो आप ITR 1 कैसे भरोगी आप? But I am not working and I मैडम, यू that आर is नॉट हैविंग सैलरी ऑल्सो। हाँ जी आप आपने सीओपी ले रखी है ना मैडम? COP लिया हुआ है। हाँ, तो आप तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए ना आप, अदरवाइज। यहाँ पे अगर हम इसको ये ऐसे भी बोलें कि My आपने रेवेन्यू अर्न नहीं किया तो जीरो इज ऑल्सो इनकम, आप वहां पे यू आर अ बिजनेस और प्रोफेशनल नेचर ऑफ पर्सन। प्रोफेशन में लास्ट टाइम कैसे डाला था रिटर्न आपने मैडम, ITR 4 में? एक साल पहले भी हुआ था। आई वॉज गेटिंग माई रिटर्न फिल्ड फ्रॉम समवन एल्स, तो उस टाइम का भी मैंने चेक कर लिया, वो लास्ट टू लास्ट ईयर था, उसमें ITR 1 ही भरा था, उसमें भी मेरे कोई GST यही 2 थे इंस्टीट्यूट के उस नहीं साल। नहीं, उसमें देखो मैडम, मेरा मेरा ये कंसर्न है, यू सिंस यू आर हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड यू आर engaged in a practice also, No, तो I'm not engaged in practice. I do have certificate of practice, but I do consulting, you do freelance kind of consulting. It's not फ्रीलांसिंग much इनकम of- आप कहाँ शो कर रही हो? फ्रीलांसिंग इनकम तो आ रही होगी ना आपकी? नहीं आ रही, अभी कोई इनकम नहीं आ रही। मेरा सब कुछ ऑनलाइन, मतलब बैंक से होता था, मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग अब्रॉड डूइंग एवरीथिंग, एंड दिस ईयर ऑल्सो आई एम Madam, नॉट। you are traveling abroad, you are incurring expenditure. From where you got this My expenditure? husband is incurring सेविंग एंड फैमिली इनकम शी इज मतलब एंजॉयिंग। I would like to say, आपने बोला ना फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो, प्रोविजन 7 में भी 2 लाख से ऊपर पे जाने पे फॉरेन खर्चे पे बात वो आती है, अगर मैंने स्पेंड किया, मैंने स्पेंड नहीं किया। माय हस्बैंड हैज बीन स्पेंडिंग ऑन है। दैट। ओके मैडम, ओके, ठीक है मैडम, ऐसा है कि मैं एक बार, एज फार एज नॉर्म्स, अभी मुझे इंटायरली ये लग रहा है कि बीइंग यू आर हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, हाँ जी राइट, और क्योंकि बिजनेस इनकम ITR 1 में अवॉइडेड है, राइट, जो भी बिजनेस नेचर के एसएससी हैं वो ITR 1 में अवॉइडेड है, तो ये ITR 4 मुझे प्राइमा फेसिया समझ में आता है, राइट। तो इवन दो आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो फर्दर, मेरा नंबर आपके पास है ही, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली एंड डिस्कस टू मी ऑन दिस, ओके, थैंक यू। राइट मैडम, मीनू मैडम? वन मोर थिंग, वन स्मॉल क्वेश्चन। यस मैडम। नाउ मैं GSTR सिर्फ नंबर सिर्फ इसलिए रख रही हूँ बिकॉज आई हैव हर्ड कि नाउ इट्स गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू गेट द रजिस्ट्रेशन। तो लाइक आई एम नॉट प्लानिंग टू वर्क दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आई एम नॉट श्योर। तो मैं फिर क्या फालतू में ये करती रहूंगी काम की, ये मैं बिजनेस का ये भरूं और वो नॉट पार्ट ऑफ हिज डेलिब्रेशन that holding or not holding of a GST number, that he can't answer na. ओके He's the direct tax expert. नहीं नहीं, And वो इसको दूसरा अगर हम बोले तो इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई चीज अपने पास रख रहे हैं तो उसकी compliance is cost. कॉस्टिंग तो वो मैडम रिटर्न बियर तो करनी भरनी पड़ेगी, बियर GST करनी अगर आप पड़ेगी। GST नंबर है, रेगुलर रिटर्न भरना है, GST उसको भर कंप्लाई रही हूँ, कराना वो नील जा रहा है, GST भर रही हूँ मेरे मैडम। You are a business assessee and बढ़िया है मैडम, accordingly बढ़िया। the मतलब income हाँ, tax. अभी क्लियर भी हो गया ना, GST रिटर्न है, नील Yes. भर रहे हो, यार बिजनेस एसएससी, तो you are a business assessee basically. ITR Should 4 आप not लिख file लो। ITR 1. This is advisable to you. ओके Right, फाइन। sir. Right. So, sir, Meenu ma'am, I hope Okay. your core queries is answered now. Yeah, but you will let me know if I can file under ITR 4. Can I, when my income is zero? Okay, madam, I will let you know. You just call me. You note down my number, 9899407778, and accordingly we will discuss to you. Okay, fine. Thank you. Welcome, Thank you. madam. Welcome. Asha ji, any with other this, query? sir, all questions have been answered. So we can proceed for the closure of today's webinar with your permission, sir. Right, madam. Right. So It's all good. I will take this opportunity to give a formal vote of thanks. So thank you so much, Pankaj ji, for your enlightening session on this critical issues in the ITR reporting and changes in the ITR. And definitely it's my privilege ki on behalf of GWCAA, I am here to give thanks to all the participants, to our distinguished speaker,
तो थैंक्स अ लॉट सर कि आपने अपना टाइम हमें दिया और सभी क्वेश्चंस का इतने अच्छे से आपने पूरा उसका रिप्लाई किया, इवन दो कि सम ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक फुल ऑन कंसल्टेंसी आई वुड से that was but you answered very well sir. Yeah. Thank you so much, and thanks to all the participants who have joined us today and make the session interactive, because आप लोगों का ही ये interaction होता है कि speakers को and organizers को motivation मिलता है to do more. And with this, we will close today's session. Thank you so much. Thanks to each one of you. Thank you so much. Thank you, Asha ji, Thank you, sir. for extending this opportunity as well and for listening me. Thank you, Right. sir. Thank And you. I would like to thank all the entire member of Gurgaon Women Chartered Accountant Association for giving me this opportunity to deliberate on this particular topic. And I'm really thankful to all of you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir.